Hello friend, welcome back in our classroom, means SSG Art World Classroom. Today I am going to show the classroom to introduce our students and my colleague Vivek sir. All of you will watch the video up to last, because in the last session my colleague say about the bronze sculpture technique. Indirectly, not bronze sculpture, the metal casting. About the metal casting system, he will discuss about it. So thank you very much and subscribe the channel for next video again. Most welcome all of you. Thank you. Now you will complete this portion. Okay. Watch properly. It's look like line. Okay. Here and there. But Western art don't have use of line. Okay. To maintain. But this light effect is type of line, but it is not line. Because of it, they apply first brownish thick line. After that reddish slight thin, then that thick line, slight thin, then that thick line, and after that have use of yellow line, yellowish line, that will be thicker than what? Red line, yes. Thicker than red line. It's 3 step. At last, have touch of white slide. But white should be merged, not white line. So you have to merge, means you have to use all these lines before dry. If that color will be dry, then it will not merge. Okay? Great. Sir, will it harm if it is hollow inside? Yes, obviously, because you are giving the only a media on which you can paste your paper mache. And that paper mache, after pasting, that layer will be minimum 12 mm. Okay,
after 12 mm, when that surface will dry, after that your this paper don't have any valuation. Okay. Actual armature need for making the concept at that time, it will not fall down. After which material you are using, it will be self-dependent after completing. So before completing, how you will apply the layers? Up to that time, need this armature. After that, don't have value that armature, because your material will be hard. It will be dry. You are doing paper meshing. Okay. Yes. You are mixing particular glue. That glue will be perform the concreteness of your paper meshing. So automatically that will be structure. At that time it is actually all students are thinking it is a structure. No, armature need to make the structure. After making structure, that material will self-dependent to stable. Okay, just like it is flexible now. So don't worry. You need a base on which you keep the raw materials which you want to apply. That's all. Okay. And when you are going to keep the paper messy, at that time you will mix up with water the Fevicol and use with smash with brass. Okay, it should be fully damp. Then you can easily keep it. Otherwise, if you keep directly, so suddenly it will not soak the glue from your paper mess. So it will create problem, fall down, this type of problem. This paper can be cracked. And why I told you use the brass for giving glue? When you are smashing it, all layer of the paper will paste. So we are using very thin soaking type of a paper, newspaper soaking type of paper. If we will use hard paper, it will not transfer your glue to another paper. Okay. It's like you are doing the black. Okay. As scientific way, that is big or not? That is big. Scientifically, you go scientifically original, follow original way. Okay. Upper ground mix. First you make original ground. After that, grow the grasses. It's real things. Always follow the scientific way, natural way. Okay, naturally, grass grow on the land. First, you have to make real land. After that, we will smash some green effect, and after that, through the strokes, we will show the individuality of grasses, not grasses.
serena color. Dark color after using approaching light color. First I approach light color, then middle color, middle tone. After that I am using dark tone, white. What is the reason of it? When you want to merge the color unique, means you are not showing that means just like I use Persian blue. This I am not showing this material color is Persian for the shadow which you told. At that time, if we will approach light first and then dark, automatically that light color merge with it and create the shadow feelings. If we will invert it, then the effect will be totally opposite. Where we need opposite, at that time we have to apply opposite, but not now. Just like I am applying Persian, okay, I cannot take any other color. No, just now I take Persian blue. I did not take any other color. Then it should be Persian blue, but for this process, when I am using it, it automatically will not be Persian blue color, just dark tone only. Okay, but if you will use first dark color means Persian blue and then you will apply light means yellow ochre or yellow, that will be mixed up and create green color. That is the point. But it is not making green color. It affected but not green color. The purity of yellow and purity of blue you can visualize with mixing process, not fully.
oil color, so it never press, means you have to control the pressure. You do not press your brush. You have to use lightly, then yellow will be yellow. But when you want to merge it greenish, at that time you apply the brush pressure. Here I have not used the pressure, but here for mixing. Yes, it is also fully scientific. As color theory. Light to dark means basically we go to dark to light. After that, when I am going to create the valuation of volume at that time, for necessary we are not using light to dark. We are applying light color first, then dark color. Layer wise, this is one layer only. Before it has dark color, just like you, dark colors. We are applying light against, then that dark color. Next day when you will approach color, that time it is not full final. That time you have to approach more light. So this way you will achieve. So now you go one part. I think all are individual parts. You are perfect this time. Okay. ये ब्रोंज कास्टिंग है, पता है ना? इसका प्रोसेस क्या है, होता किस किस तरीके से है और इजीली कैसे किया जाता है, ठीक। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं ब्रोंज कास्टिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो वर्क है इसको किया गया है कोल्ड प्रोसेस। कोल्ड प्रोसेस मतलब कि इसमें होता है मोल्ड ठंडा, उसके ऊपर कास्टिंग होती है, इसीलिए उसको कोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। एक होता है इंडियन प्रोसेस, उसको बोलते हैं ढोकरा, दैट इज हॉट प्रोसेस। हॉट प्रोसेस इन द सेंस कि उसमें मोल्ड जो है वो गर्म होता है और उसमें कास्टिंग होती है डायरेक्ट। तो ये कोल्ड प्रोसेस और हॉट प्रोसेस में फ़र्क क्या है? गर्म होता है, एक ठंडा होता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? डालने में आसानी होगी, एग्जैक्टली। तो इटालियन प्रोसेस में क्या होता है, फ्लो जो है
ठंडा मोल्ड होने की वजह से कम होता है या उतना नहीं होता है जितना कि हॉट प्रोसेस में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोल्ड जो है ठंडा है, जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे बॉडी से टच होते हुए मेटल ठंडा होते जाता है। ठीक है, लेकिन हॉट प्रोसेस में उसको टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद मिलती है मोल्ड के बॉल से, इस वजह से वो फ्लो स्पीड में होता है और बहुत फाइन और पतला कास्टिंग हो सकता है। इवन योर थंब प्रिंट कैन बी कास्टेड। ओके, इतना फाइन होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में काम किए हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको मैंने अभी एक नया चीज़ आया है मार्केट में, 3D पेन, सुना है? जी सर। 3D पेन, उसमें एक फिलामेंट होता है प्लास्टिक का, उससे ऐसे ड्राइंग कर करके चीज़ें बनाते हैं। तो 3D पेन वो PLA प्लास्टिक होता है, वो बहुत अच्छा होता है कास्टिंग के लिए। तो मैं नए नए तरीके से कास्टिंग करने का खोजता रहता हूँ, क्या क्या चीज़ों से कास्टिंग किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये सब लाइंस जो देख रहे हो, ये डोकरा की तरह लाइंस जो मिल रहा है, ये 3D पेन की वजह से उसमें ड्राइंग कर करके ये पूरा किया गया है। ओके, तो इसमें और भी मटेरियल्स यूज़ किया है, जैसे कि कॉर्गेटेड शीट है। ठीक है, पेपर शीट, वो जो नहीं होता है गत्ता, गत्ता वगैरह को काट के लगाया गया है। और इसमें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत से मीडियम मतलब बॉक्स में मैं और भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे मशरूम वगैरह हुआ, जो जल के ब्रोंज कास्टिंग में क्या होता है कि मीडियम कोई भी हो आप यूज़ कीजिए, बट वो जल के अगर वो वाइट पाउडर देता है, ठीक है, फूंक दिए उड़ जाएगा, तो उसको कास्ट कर सकते हैं। अगर वो कोयला बन जाता है, कास्ट करते टाइम वो जाम हो जाएगा मोल्ड में, तो फिर उसको हम लोग कास्ट नहीं कर सकते, उससे बॉडी डैमेज होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस बताते हैं कैसे होता है। जो हॉट प्रोसेस है उसमें होता है एक पोरिंग कप होता है। पोरिंग मतलब पोर करना, डालना, पोरिंग का कप, और एक उसी में रनर लगा है, इधर से राइजर। मतलब कि जब हम यहाँ से कोई मेटल को डाल रहे थे, यहाँ कैविटी है तो उसमें एयर है ना। अब उस एयर को निकलने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम कप में डालें और अंदर जाके एयर के साथ वो फंस गया तो पूरा कास्टिंग नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ से एक राइजर रखते हैं। राइजर का मतलब जहाँ से एयर निकलेगा। अब उसमें कास्टिंग किए, पोर किए, और इधर से आया और निकल गया ऊपर। तो पोरिंग कप और राइजर दोनों एक लेवल पे होते हैं, वाटर लेवल पे। वाटर लेवल के ऊपर तो नहीं जा सकता है मेटल, तो जैसे यहाँ से डाले इधर से आके मेटल निकल गया, हम लोगों को पता चल गया कि कास्टिंग हो सकती है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें होता है पहला चीज़ जो होता है वो है स्क्रू। स्क्रू मतलब जिसमें कि मेन तुम्हारा चैनल है उसको स्क्रू कहते हैं, मेन चैनल को स्क्रू कहते हैं। फिर लगते हैं रनर और राइजर। रनर कैसे लगेगा, 4 अंगुल का डिस्टेंस में एक रनर एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, मेटल का एरिया 4 अंगुल समझ लो। तो 4 अंगुल का डिस्टेंस में हम लोग ऐसे करके लगाते हैं बॉडी में। सपोज मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे स्क्रू डाले, एक यहाँ पे स्क्रू डाले, फिर यहाँ से रनर लगाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जहाँ जहाँ मान लो कि एयर फंसेगा, जैसे यहाँ पे एयर फंस सकता है, रुक सकता है, यहाँ पे ऐड कर दिए, जोड़ दिए। ये सींग को जोड़ दिए, कान को यहाँ से थोड़ा निकाल दिए, यहाँ पे जोड़ दिए। इससे क्या होगा, मान लो यहाँ से हम रनर ये पीतल डाले, यहाँ आके फंस गया एयर, तो पूरा नहीं आएगा। यहाँ से पूरा कनेक्ट कर दिए तो रंग हो जाएगा। बॉडी में जैसे जैसे रंग होगा वैसे ही एयर जो है फ्लो होता जाएगा। एक होता है ग्रेविटी और एक होता है तुम्हारा मैंने जब हम लोग रन कर रहे हैं मेटल को, तो नीचे नीचे जब स्पीड में जाने लगेगा, इधर ही से मान लो स्पीड में जा रहा है, तो नीचे जाके एयर फंस सकता है। ठीक है, तो उसको ऊपर तक, नीचे से फिर ऊपर आता है ना, पहले जाएगा नीचे मेटल, फिर ऊपर आएगा। तो ये फ्लो को संभलने का मौका देते हैं बीच में। फिर यहाँ से ऐसे डालेंगे, यहाँ से इतना दूर तक ऐसे नीचे गया, फिर ग्रेविटी के ऊपर, यहाँ से फिर ऐसे ऊपर आता है। क्यों, जब नीचे गया फिर धीरे धीरे जब ऊपर आ रहा है तो उसको थोड़ा समय दे रहे ताकि एयर भी धीरे धीरे ऊपर आए, नहीं तो फट पूरा साफ कर जाएगा तो एयर ट्रैप हो सकता है। ठीक है,
इसके लिए यहाँ से ऊपर करते हैं, बीच से ये ऊपर जाएगा। फिर जब ऐसे करके पूरा रन हो रहा है कप से, रन हो गया, फिर राइजर से ऊपर चलाएगा। 2 राइजर ऊपर से स्क्रू से निकालते हैं, उसी से एयर निकलता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट प्रोसेस। मेटल का क्या होता है, जैसे ये तो हम लोगों को पता है कि ये कैसे रन होता है, और इसका प्रोसेस ये है, जो भी मटेरियल में अपना काम करना हो कर लिए, वैक्स में हो या कुछ और मीडियम में भी कर लिए, पेपर को यूज़ कर सकते हो तमाम मीडियम में। करने के बाद रनर वगैरह लगाने के बाद फिर उसको हम लोग मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको एक बार इन्वेस्ट किया वो खत्म हो जाएगा, उसको मोल्ड को तोड़ना होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट होता है। मोल्ड करना कैसे होता है, इसको टीना से फिर कवर कर दिए या कोई शीट से कवर करके 1:2 का रेशियो होता है सुर्खी और प्लास्टर। सुर्खी मतलब ईंटे का चूरा, 2 है तो 1 रेशियो है तुम्हारा प्लास्टर। घोल के डालते जाना, पूरा भर देंगे। एक लेयर हो गया, जब पूरा कवर हो गया स्क्रू के साथ, फिर क्या करेंगे, उसको नेटिंग करेंगे। वहीं GI वायर और ब्लैक वायर से पूरा बांधा जाता है, पूरा कवर किया जाता है, बढ़िया से उसको एकदम जाल जैसे बुना जाता है। उससे क्या होता है, मोड़ बहुत कमज़ोर हो जाता है अपने के बाद। अगर वो सपोर्ट नहीं होगा तो हाथ से छूटा घसट के पूरा टूट जाएगा, है ना। नेटिंग करने के बाद फिर उसको फिर ऊपर से फिर कवर कर, ये हो गया मोल्ड। मोल्ड होने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, मोल्ड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि भट्टी में डालेंगे। और भट्टी में डालने के बाद क्या होगा, इसका होता है डीवैक्सिंग। डीवैक्सिंग का मतलब कि वैक्स जल के खत्म होगा, डीवैक्सिंग पिघलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है तकरीबन 18 से 24 घंटा, डिपेंड करता है मोल्ड का साइज। मोल्ड जितना बड़ा होगा उतना टाइम लगता है, क्योंकि अंदर तक उसको टेम्परेचर को जानना है। जब मोल्ड पूरा पक जाता है तो भट्टी में देखने से पता चलता है कि पूरा ऑरेंज हो जाता है, बैकग्राउंड से पूरा मिल जाता है, मतलब गायब, इतना टेम्परेचर, यानी लाल पूरा। और फिर लास्ट ये में मोमेंट में होता है क्या कि उसको बोलते हैं ब्लू फ्लेम, ठीक है। ब्लू फ्लेम क्या है कि जब लास्ट मोमेंट आता है तो जब ये गलने लगता है वैक्स तो ब्लू दिखाई देता है। तो ब्लू फ्लेम जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग अंदाजा करते हैं कि मोल्ड अब पक चुका है, आखिरी चल रहा है, ठीक है। तो 24 घंटा फायरिंग के बाद मोल्ड निकलेगा, 1 दिन रहेगा, वो ठंडा होगा। 1 दिन के बाद फिर उसको निकालते हैं, उसको कवर करते हैं, रखते हैं, और फिर पिट फर्नेस में उसको गलाते हैं, ये में क्रूसिबल में। क्रूसिबल क्या होता है, क्रूसिबल एक ये है वेसल है जो कि ग्रेफाइट और कुछ कंपोजिट से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले सकता है और उसमें ही सारा मेटल को गलाते हैं। इवन सोनार लोग भी छोटे छोटे क्रूसिबल रखते हैं। तो हम लोग जो कास्टिंग करते हैं उसमें कम से कम 200 किलो का रखते हैं, 200 बोल रहे, कम से कम 20 किलो 30 किलो, सॉरी 20-30 किलो कम से कम हम लोग रखते हैं मिनिमम। और उससे बड़ा हो तो 80 किलो तक कास्टिंग एक बार में होगा, माने पोरिंग होगा, क्योंकि बहुत वजन होता है, ठीक है। उसको 4 लोग मिलके हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए टंग होता है लोहे का, बड़ा माने यहाँ से 10 फुट बड़ा होगा। इधर 2 जन पकड़ेंगे, एक तो लिफ्टिंग टंग होता है, उसमें 87 टंग का ऐसे खांचा होता है। जब उठाएंगे तो पकड़ लेता है, फिर उसको उठा के नीचे रखेंगे। और एक तो पोरिंग टंग होता है, फिर पोरिंग टंग के ऊपर रख के उठाते हैं, और फिर एक जन सपोर्ट देता है पीछे से ताकि गिर ना जाए, हुक टाइप का, और धीरे से हम लोग पोर करते हैं। 4 लोग इसमें मिला, बड़ा रहने से। छोटा हो कास्टिंग तो 1 जन 2 जन भी कर सकते। कास्टिंग हुआ, जब मोल्ड खोलेंगे तो पूरा पीतल का बन गया है, रनर सब भी पीतल का लगा हुआ है। अब रनर सब को काटेंगे, काट के फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद होता है पैटिनेशन। इसमें ये जो ब्राउन देख रहे हैं ना, ये पैटिनेशन है, पतीना बोलते हैं।
पैटिनेशन इज अ फ्रेंच वर्ड। पतीना में क्या होता है कि अलग अलग केमिकल को यूज़ करके हम लोग अलग अलग कलर अचीव करते हैं। जैसे सिरामिक में भी ग्लेज होता है, वैसे ब्रोंज में होता है पैटिनेशन। पिगमेंट के लिए अब जैसे मुझे ग्रीन चाहिए, सबसे पहले इसके सरफेस को सरफेस ट्रीटमेंट होगा, सरफेस क्लीनिंग। उसके लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड पूरा क्लीन करता है सरफेस, मतलब इट इज़ रेडी टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स। क्योंकि अगर ऑयली बेस हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें काम नहीं कर सकते, उसको साफ करना पड़ेगा। तो नाइट्रिक एसिड पूरा क्लीन करता है। उसके बाद सपोज कि मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो ग्रीन कलर दो तरीके से आता है। एक होता है कॉपर नाइट्रेट, एक होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर के फॉर्म में आता है। कॉपर नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग बनाते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड में अगर थोड़ा सा कॉपर का तार डाल दें तो पूरा पिघल जाएगा और उसके साथ वो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, उसका वॉश करेंगे और उसको टेम्परेचर देंगे, या तो ब्लो टॉर्च से माने गर्मी देंगे, या तो धूप में रखेंगे। एक होता है कोल्ड पैटिनेशन, एक होता है हॉट पैटिनेशन। हॉट पैटिनेशन ब्लो टॉर्च से करते हैं। कोल्ड पैटिनेशन हम लोग रूम में रख देते हैं रात भर वैसे ही अपने आप, इसको हम कोल्ड पैटिनेशन कहते हैं। कोल्ड पैटिनेशन में फ़ायदा क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और साथ ही टिकाऊ होता है। ठीक है, तो टिकाऊ इन द सेंस हाथ लगने से जाएगा नहीं। फिक्सेशन भी करते हैं, लास्ट में उसका एक कोट करते हैं ताकि फिक्स हो जाए पॉलिश वॉलिश करते टाइम। बेसिकली समझो कि इसका कलर सब कैसा कैसा होता है। ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन के लिए हाइपो यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर तुम्हारा ब्लैक हुआ, उसी हाइपो को बार बार अप्लाई करते जाओ तो ब्लैक होगा। या फिर तुम्हारा अगर ग्रे करना है तो ग्रे के लिए कुछ है एल्यूमिनियम, कॉपर, पिंक टाइप का कॉपर जैसा फील देने के लिए बहुत टिपिकल वो है केमिकल्स। उसके लिए बुक्स आती हैं, केमिकल ये रिएक्शन देख सकते हो उसमें। ब्लू आता है, ग्रे आता है और डिफरेंट किस्म के प्रोसेस है। नाउ प्रोसेस पैटिनेशन को करने के भी प्रोसेस है। जैसे मान लो कि मुझे चित्तीदार, मेरे पास फ्लैट सरफेस है, मुझे चित्तीदार टाइप का ये चाहिए फिक्स, तो उसके लिए हम लोग धान का भूसी या सॉडस्ट, उसको क्या करेंगे, केमिकल के साथ उसको मिला के माने काम के साथ उसको पूरा ये कर लेंगे, कवर कर लेंगे और किसी चीज़ में पैक कर लेंगे उसको। तो जहाँ जहाँ सरफेस में टच करता है तो चित्ता टाइप का पूरा फील देगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फील आता है। जैसे इसमें देखो ये सब ट्रीटमेंट कैसा लग रहा है, चित्ती टाइप का। इससे भी और इंटरेस्टिंग आता है। सब किया गया है, हाँ रिएक्शन है। अब केमिकल को स्प्रे करके डैब करके, ठीक है, तरीके से किया गया। ये सब जो ब्लैक देख रहे हो, ये सब किया गया है ट्रीटमेंट, ताकि थोड़ा सा वो नेचुरल फील आए, है ना। एक इसमें जैसे ये बॉडी है, ये तुम्हारा जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, बंगाल टेराकोटा टेम्पल्स में टेराकोटा का ही समझो कि हिस्सा यहाँ के माइग्रेशन को दिखाया है। तो इसमें क्या है कि लोग पहले से वो के ले जाते थे, फिर बाद में क्या बैलगाड़ी आया। ठीक है, तो एक टाइम का जो एक ये है फेज है वो उसमें दिखाया है। तो उसका ही टूटा हुआ एक हिस्सा उसके ऊपर खड़ा है अपना जो सब्जेक्ट, मतलब बकरियाँ यहाँ चढ़ी आती है, घूमती रहती हैं। तो एक हिस्टोरिकल पीस के साथ उसका एक कॉम्पोजिशन। तो बेसिकली यही सब ब्रोंज कास्टिंग का प्रोसेस है। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। वैक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप जो मेंटेन करने के लिए वैक्स यूज करते हैं। आप जो ये करते हैं ना,
पेपर में काम कर रहे हैं ना, पेपर को भी कास्ट कर सकते एकदम। कॉपर थोड़ा महंगा होता है, फिर वो होता है आपका गन मेटल होता है। गन मेटल माने जिससे वो थोड़ा रेड रेड टाइप का नहीं होता है कलर, आयरन डस्ट का ही जैसा। हाँ वैसा टाइप का। उसके लिए कुछ हम लोग डायग्राम बना के तुमको थोड़ा समझा देते हैं। सपोज मेरा ये वर्क है, ठीक है। सपोज दिस इज माय वर्क एंड आई वांट टू कास्ट इट, ओके। इसमें जो प्रोसेस है सबसे पहला इसमें लगता है रनर, तो इसका पहला होता है रनर स्क्रू। स्क्रू जो है वो सीधा दो मोटा मोटा कैंडल है, वो कैंडल को ऊपर से ऐसे जोड़ते हैं और यहाँ पे लगता है कप, यहाँ से मेटल ओवर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लगना चालू होता है रनर। रनर कैसे लगेगा, यहाँ बॉडी में लगेगा, पॉइंटेड होता है रनर। पॉइंटेड क्यों होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इससे तीन फायदे, ठीक है। पहला फायदा ये कि चूंकि टैप में हम लोग पॉइंट जब दबाते हैं वो तेज से प्रेशर मारता है, तो ये पॉइंट की वजह से तेज पूरा प्रेशर मारेगा। अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो ये धीरे से फैलेगा, ठीक है। इससे हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं एरिया। सेकेंड थिंग क्या है कि इससे क्या होता है, अगर मान लो धूल गंदगी कुछ है इसमें चला गया या मुंह में जाके ब्लॉक हो गया, इससे मेरा बॉडी डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा, छेद नहीं होगा। थर्ड चीज़ है कि इसको काटने में हमको सुविधा होगा, एक चीजल मारा क्लीन हो गया, ठीक है। तीन चीज के लिए हम लोग इसको पॉइंटेड करते हैं। यहां से होगा फ्लो, ये होता है ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी, दिस इज फ्लो, दिस इज स्क्रू, दिस इज pouring cup, ठीक है। यहां से फ्लो होता है, ये हो गया तुम्हारा फ्लो। ये ऊपर जा रहा है, समय दे रहा है, जब यहाँ से हम पोर कर रहे हैं, यहाँ से मेटल आ रहा है तो यहाँ सट जाएगा तो फिर धीरे धीरे ऊपर चलेगा, ठीक है। ये जब ये हिस्सा में आएगा तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, टाइम मिलेगा इसको ऊपर आने के लिए। जब ये स्लो होगा तो क्या होगा, हमको पूरा समय मिल जा रहा है एयर को निकलने के लिए, ठीक है। ये बॉडी में हो गया। फिर ये अभी हम आपको केवल इसका अटैचमेंट दिखाए, एयर निकलेगा यहाँ से ऊपर से। जब हम इसको मोड कर लेंगे, फिर यहाँ तक जैसे हम बना लिए, बांध लिए, मोड कर लिए, यहाँ तक जब स्क्रू आ गया ना, स्क्रू हमको दिख रहा, मोड को हम पलट दिए, तो ये सर यहाँ से फोर नहीं होगा, यहीं तक रहेगा, मान लीजिए यहाँ तक आके कनेक्ट हो गया। ये होगा पलटेगा, जब पलटेगा तो क्या होगा, एक साइड में हम निकाल राइजर, इसको उल्टा यहाँ से निकलेगा राइजर, ठीक है। ये हो गया आपका कप, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझिए, ये जो है पूरा उल्टा हो जाएगा जब हम लोग कोर करेंगे या ये करेंगे। लेकिन पकाते टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे,
ताकि इसका जो कप है ये नीचे रहे और सारा मेटल को निकलने में सुविधा हो। ओके, फिर जब पोरिंग करेंगे तब इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। ये होता है प्रोसेस। ये बॉडी जो है ये आपका क्या होगा, जब हम लोग हीट देते हैं ये पूरा बॉडी जो है कैविटी में बदल जाता है, खाली हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक लेयर लेना है इतना मोटा, हमको एक लेयर में इसको कास्ट करना है, पूरा सॉलिड नहीं करना है। तो क्या करेंगे, अंदर भरते हैं हम लोग कोर। ठीक है, मान लो कि ये वर्क है सपोज, ये इसका थिकनेस जो है इसको अचीव करने के लिए इसमें पहले कोर भरते हैं, माने चला जाए कोर, इन्वेस्टमेंट ही होता है वो भी। कोर चला जाएगा तो क्या अंदर से और बाहर से हमको एक मिल रहा है एरिया, न तो क्या होगा ये सॉलिड हो जाएगा। इस कोर को स्टेबल करने के लिए इसमें नेलिंग किया जाता है, इसमें नेल्स लगाए जाते हैं, कांटी। कांटी क्या करता है, ये जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है और अंदर का कोर है, इन दोनों के बीच में हुक के जैसा काम करता है ताकि ये बैठे ना। ठीक है, बैठ जाएगा तो क्या होगा, ये दब जाएगा और फिर मेरा ये एरिया सट गया, कास्टिंग यहाँ पे नहीं होगा। कोर क्या चीज का होगा, मटेरियल वही है इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सुर्खी जो है आपका ये ईटा का चूरा, उसको यूज करते हैं। ईटा का चूरा क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ईटा का, हाँ, हीट रेजिस्टेंट प्लस मान लीजिए नमी है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, मॉइस्चर को आसानी से वो निकाल सकता है, मोल्ड क्रैक में जो है। टेम्परेचर के लिए तो ये जो फीचर होता है, फीचर को क्या, ये जो फीचर बन रहा है जो इसको क्या मिट्टी में बनाते हैं? नहीं, मिट्टी में नहीं बना, मैंने बताया ना 3D प्रिंटिंग, प्लास्टिक्स। आजकल बहुत तरीके के मीडियम्स आ रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सर्च कीजिएगा पता चलेगा क्या क्या होता है। इसको वैक्स में भी बना सकते हैं, और अगर आप बोल रहे हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में मॉडलिंग करते हैं, पहले पूरा शेप को मॉडल कर लिए, फिर उसके बाद उसका मोल्ड लिए, मोल्ड में फिर हम लोग करते हैं वैक्सिंग। वैक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो पूरा शेप ले लिया अपना, शेप लेने के बाद फिर उसको कास्ट किया। और कुछ किसी को सवाल पूछना अब तो लाए इसीलिए कि आप लोग देखिए, थोड़ा अंदाजा हो कि प्रोसेस कैसे होता है। इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जो कास्ट कर रहे हैं बाहर से अंदर जा रहे हैं, काट रहे हैं निकाल रहे हैं। इसमें क्या होता है, एडिटिंग का सीन नहीं है, यहाँ टूटा तो गया। प्लास्टिक में क्या है, हम लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं मॉडलिंग के, और इसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ तोड़ कर सकते हैं। इसमें हम अगर इसको हम काट दिए था, इसको वेल्ड कर सकते हैं, है ना, इसको हम चाहे तो पिचका सकते हैं, फिर से हम काम कर सकते हैं इसको गला के, लेकिन स्टोन को दोबारा वैसा रिसाइकल नहीं किया। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। प्लास्टिक में क्या क्या मटेरियल होता है, सोचिए, बताइए, चलिए। जैसे सबसे इजी मटेरियल क्या है आपके हाथ में एक्सेस है, मिट्टी से प्लास्टिक मटेरियल, पेपर है, मोम है, कुछ भी, anything can be plastic which can be where we can add the material to get the result, to achieve the result। और जिसमें हम लोग कार्व आउट करते हैं, that is called liquid। हाँ, कार्व इन द सेंस कि हाँ कर सकते हैं, जैसे अभी बता रहे थे चोल पीरियड में, या हम लोग का इंडियन जो स्कल्पचर है उसमें जो ब्रोंज कास्टिंग होता था, उसमें क्या करते थे लोग, फाइन रिजल्ट पाने के लिए चिजलिंग करते थे। हर चीज़ को जो है बनाया नहीं जाता, कास्टिंग नहीं किया जाता, जैसे ज्वेलरी, फिर आपका कपड़ा है ना, तमाम चीज़ों को चिजल करके वो लोग निकालते थे।
अलग अलग किस्म का छोटे छोटे चीज़ें, इतनी छोटे छोटे चीज़ें, उसमें राउंड फॉर्म बना हुआ है, इसमें ट्रायंगुलर बना हुआ है, मैंने अंदर से कार्व किया हुआ चीज़ है, मैंने उसको पंच किया तो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया या सर्कल बन गया। ऐसे फ्लैट सा बना लिए हैं, उसमें हम क्या किए कि लाइन मार दिए और बीच में राउंड 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 आपको मोती जैसा बनाना है, तो चिजल से उसको अचीव करते हैं, पूरा डिटेल उससे निकलेगा। फिर कपड़ा वपड़ा है उसको भी चिजल आउट करके पूरा काम करते हैं। तो सारे टूल्स में सेम काम टूल्स, हाँ। तो ये लोग का कास्टिंग में भी अलग अलग लोग हैं, जैसे कोई कास्टिंग में एक्सपर्ट है वो कास्टिंग करके दे दिया, कोई मॉडलिंग में एक्सपर्ट है मॉडलिंग करके कास्टर को दे दिया, कास्टर कास्टिंग किया। फिर जो चिजल वाले हैं वो लोग चिजलिंग करके पूरा ऑर्नामेंटेशन, हाँ, ज्वेलरी बनाएंगे, पूरा डिटेल करेंगे फिर उसके बाद। तो ये जो नटराज है, नटराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोलर आर्ट। नटराज को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, इवन कि उसका जो अंग भंगिमा है ये सब को भी बहुत सोच समझ के बनाया गया। शिव को माना जाता है विनाशक, और विनाश के साथ ही होती है सृष्टि, है ना। तो ये जो इसको मिटाते हैं, कुछ है कपड़ा वपड़ा है, जब ले आओ कपड़ा। मेटल को, ब्रोंज को पिघलाने में लगता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। एल्यूमिनियम को पिघलाने में लगता है तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और लोहा पिघलता है तकरीबन 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। इसको भी संभालना बहुत मुश्किल होता है। जब आप बोरिंग करते हैं तो आपको बाकायदा वो मैंने गर्मी से बचने के लिए सूट पहनना पड़ेगा, ग्लव्स पहनना पड़ेगा, जूता पहनना पड़ेगा बाकायदे। अगर आपके पैर में गिरा तो सीधा छेद करके निकल जाएगा, तो झलकता है ना। मान लीजिए कि हम तो ऐसा भी फील किए कि गिरा होता क्या है कि बहुत करीब आया, मान लीजिए ग्लव्स तो पहन लिया आदमी, यहाँ तक ग्लव्स पहना है, यहाँ पूरा झुलस रहा है टेम्परेचर से, अब भयानक जल रहा है। छोड़ा जहाँ तो एक तो मैंने जो भी आसपास है सबका पैर गया, ऐसा सीन। तो अपना हाथ बचाए कि गर्मी सहे, ऐसा सिचुएशन है। क्योंकि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में वो गर्म है, मामूली चीज़ नहीं है। हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड झेलना मुश्किल हो जाता है गर्मी में, वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड में हाफने लगते हैं, कम से कम 1000 डिग्री एटमॉस्फेयर में फेंकेगा। हाँ। तो आसपास जो एकदम भयानक गर्मी, ये सब पूरा एकदम रोआ सब जल गया, समझ लो, झुलस गया पूरा, जैसे सेक रहा है ब्लोअर से ऐसे जगह। चिकन को रोस्ट करते हैं ना वैसा टाइप का समझ। वैसे में सोचो कि अगर तुम थोड़ा सा मिस्टेक किए तो फिर गया, टूटेगा। जैसे तुम सोचो कि 70-80 किलो का मेटल पिघला होगा, ऊपर से क्रूसिबल का वेट, वो भी आपका समझ लीजिए 50 किलो से इतना मोटा होता है उसका ये गेज। गया, टूटा तो पूरा छिटकेगा, आसपास जो भी है सब छेद। क्योंकि लिक्विड, अदर लिक्विड जो नॉर्मल लिक्विड होता है वो उसका छिड़कने का स्टाइल अलग होता है, और मेटल लिक्विड का छिड़कने का स्टाइल अलग होता है। मोटा मोटा पूरा ऐसे, जैसे पारा को जो देख सकते हो ठंडा में ताकि डैमेज ना करे, उसको गिराओगे तो कैसे हो, जैसे तुम्हारा थर्मोमीटर को हाथ से गिरता है तो छिड़कता है, देखोगे दाना दाना स्टाइल में छिड़कता है, लिक्विड जैसे बहने जैसे नहीं छिड़कता है। बाकी अदर्स, क्योंकि पारा तुम्हारा क्या है, मेटल है, ठीक है। फिर ये तो उसके साथ साथ ये तो गर्म भी है। इसको साफ करने बहुत के मजा लिए आया। लगता है, ब्रोंज को साफ करने के लिए लगता है, मैंने क्लीन करने के लिए उसमें लगता है बोरक्स, या जिसको बोलते हैं सुहागा, वो सोना को साफ करने के लिए भी लगता है। तो जैसे ही सुहागा डालेंगे उसमें मिलाते हैं तो क्या होगा, जितना भी सेडिमेंट्स है वो ऊपर आ जाता है, तो उसको छान के हम लोग साइड कर देते हैं, निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सुहागा होता कैसे है? पाउडर फॉर्म में, वाइट पाउडर फॉर्म में आता है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है। ये एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए लगता है नौसादर, मिस्त्री की तरह, हाँ? मिस्त्री की तरह। क्या? मिस्त्री की तरह होता है। मिस्त्री, हाँ। सुहागा जो है मिस्त्री के जैसा होता है। नहीं, सॉरी, वो अलग अलग फॉर्म में भी आता है, शुरू वाला, हाँ। थोड़ा सा हाँ हाँ, हाँ, ट्रांसलूसेंट वाइट होता है। टाइप का होता है। इसमें नौसादर लगता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कास्टिंग फिर अलग टाइप का होता है,
एल्यूमिनियम कास्टिंग में क्या होता है, जब पीतल का फ्लो ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का फ्लो कम है, समझे ना, तो उसमें हम लोग को रिजर्वायर लगाना पड़ता है। मैंने ज़्यादा एल्यूमिनियम उसमें रहेगा तो क्या होगा, धीरे से श्रिंक करता है, खींचेगा, समझे ना। अगर मान लो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेटल नहीं है तो क्या होगा, कास्टिंग ही नहीं होगा, क्योंकि खींचता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जैसे ये है, सपोज ये स्क्रू है, तो स्क्रू में ही हम लोग यहाँ पे रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर माने यहाँ से मेटल अगर मान लो यहाँ से डाल रहे हैं, यहीं से खींच रहा है, तो यहाँ से फिर लेगा, समझे। ये एक्स्ट्रा एडिशनल कंपार्टमेंट सब जो है, जैसे स्क्रू बोरिंग का होता है ऐसा ट्राइंगुलर, इसमें भी हम लोग यहाँ पे ट्राइंगुलर जोड़ सकते हैं, या जैसा भी शेप, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेटल एक्सेस रहना चाहिए, ये खींचता है। हाँ, इसमें मतलब कास्टिंग में क्या है, इसमें क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें वैरायटी ऑफ पैटिनेशन नहीं होता है, कलर का ये कमी है। इसको या तो तुम ऑक्सीडेशन कर सकते हो, उसको कैसे करोगे, उसके लिए मैंने हाइपो को यूज़ कर सकते हो, काला होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको पैटिनेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग नेचुरल पैटिनेशन जब करते हैं, उसको भी मैंने ट्राई किया है। कैसे करेंगे, इसके बॉडी में नींबू या इमली वगैरह उसको बांध देंगे, ठीक है, कहीं कहीं, और बांध के उसको या तो यूरिन या फिर गोबर का पिट जिसमें होता है, मैंने गाय का गोबर जहाँ जमा होता है रिजर्व, वहीं पे डाल के रख देना 1 महीना। तो यूरिन और उसमें क्या होता है ना, अमोनिया होता है और उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, वो सब क्या होता है, इसको इसके साथ एक्ट करेगा, तो ये सब ब्राउनिश ग्रीनिश ये सब इफेक्ट आता है। ब्लैक करना हो तो उसको आग में उसको ऑयलिंग करके ऑयल लगा दिए और उसके बाद उसको आग में सेक दो, जिससे चिकन सेकते हैं रोस्ट कर, उसका धुआं उसमें बॉडी में चिपकेगा और पूरा काला हो जाएगा, और अगर उसको डाल के छोड़ दिए तो पूरा एकदम कोयला हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ऊपर से पॉलिशिंग किए जो ट्रीटमेंट देना है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ये 3 चीज़ें आसानी से अच्छी हो सकता है केमिकल। हाँ, ब्रोंज, कॉपर में भी होता है अलग अलग कलर, तो कॉपर का इसका बेस जैसे येलो है, उसका बेस थोड़ा सा रेडिश होगा, ऐसा टाइप का होगा, जैसे इसका बॉडी है ना, ये कॉपर टाइप का, ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर आप कलर आइए, ब्लैक, ब्राउन, जितने कलर है सब आएंगे जो ब्रोंज में आए, बस यही डिफरेंस है। बाहर जाता है तो सबसे अच्छा किस मेटल का लाइफ ज़्यादा होता है बाहर? ब्रोंज। ब्रोंज मतलब एक तो इसलिए भी उसको ये करते प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें एक तो मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग किस्म का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आप कोस्टल एरिया में जाइएगा, वहाँ के स्कल्पचर्स को देखिएगा तो ग्रीनिश दिखाई देगा। जैसे आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखिए, वो समुद्र के किनारे है और सारा एकदम ग्रीन कलर का पूरा ग्रीन हो जाता है। वहाँ का सॉल्ट वाला जो हवा है उसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन होता है उसका। जैसे आप इटली की बहुत सारी स्कल्पचर्स को देखिएगा, ग्रीनिश इफेक्ट आएगा, कहीं कहीं फिर ब्लैकिश दिखाई देता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारा मतलब कैसा एयर का कैसा क्वालिटी है। हाँ, वो जो है वहाँ का एयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा एयर क्वालिटी वैसा वो इफेक्ट करेगा। ये तो ऐसा चीज़ है कि मैंने एक बार कास्ट कर दिया, ये हमेशा के लिए होता है। टेम्परेचर कैसा लगा? इसमें जंग नहीं लगता है पहली बार। ये मटेरियल को ये कन्वेंशनल मटेरियल है, यहाँ ध्यान दो। और एस्थेटिक वैल्यू हिसाब से ब्रोंज सबसे अच्छा क्यों लगता है कि सब मेटल में एक शाइनिंग मोटो रहता है, और शाइनिंग मोटो कमर्शियलाइजेशन को शो करता है, लेकिन ब्रोंज में शाइनिंग होते हुए भी उसमें सॉफ्टनेस होता है जो
फाइन आर्ट्स को लीड करता है। इस ये कारण से कोई ये choice बहुत नहीं ही है। कन्वेंशनल मीडियम है। कन्वेंशनल मतलब जो बहुत पहले से यूज होता है। कन्वेंशनल मीडियम में बोला जाए तो क्या, ब्रोंज आता है, स्टोन आता है, वुड आता है, टेराकोटा आता है। ये 4 मीडियम जो है हर कॉलेज में सिखाया जाता है सबसे पहले। उसके बाद कोई भी मटेरियल को सिखाया जाए। वेल्डिंग है, स्टील है और फाइबर है और भी तमाम मीडियम जो आजकल आ रहे हैं, ठीक है, ग्लास है ना। लेकिन ये इतना प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि इसको एक बार कास्ट कर दिया तो ये मेंटेनेंस फ्री है। ओपन एयर में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन में भी क्षय होता है। पुराना मार्बल का स्ट्रक्चर्स को देखिए या फिर आप स्टोन का स्ट्रक्चर्स को देखिए, वो भी एयर और ये के साथ आके बाहर में जब आप फाउंटेन सब देखिए, इटली की फाउंटेन्स देखिए, तो वो जो है ग्रेन होके वो ये क्षय होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है उड़ीसा टेम्पल का जितना स्कल्पचर है वो राफ होके घिस के खत्म हो जा रहा है। उसका कारण क्या है बताए थे। तो एक तो हम लोग का स्टोन का क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। स्टोन का क्वालिटी, स्टोन जैसे हम लोग 3 तरीके का स्टोन जानते हैं। पहला हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक और एक होता है आपका इग्नियस, है ना। इग्नियस रॉक को हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब कार्विंग वगैरह में जनरली। हालांकि उसको भी किया है कुछ आर्टिस्ट, जैसे कि हेनरी माथिस शुरू में कुछ स्कल्पचर्स बनाया था। हेनरी माथिस बनाया। हेनरी लॉरेंस एक आर्टिस्ट है, मॉडर्न आर्टिस्ट है। उसने क्या किया था कि इग्नियस रॉक्स, जो लावा रॉक्स है, उसको यूज़ करके कुछ आइबेरियन स्कल्पचर से इंस्पायर्ड होकर कुछ फिगरेटिव काम किया। उसमें वो जो दाना है और रेल्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उस समय देखा गया। उसके बाद मेजरली कोई ऐसा इग्नियस रॉक में काम नहीं किया है। लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया में 2-3 तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। जैसे मथुरा में लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर, बनारस का चुनार का पिंक सैंडस्टोन, ठीक है। फिर आप साउथ में चले जाइएगा तो आपको मिलेगा येलो सैंडस्टोन। ये सब 3 तरीके का सैंडस्टोन पाया जाता है। ये तीनों सैंडस्टोन आप जैसे मथुरा गांधार की कला हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि बुद्ध प्रतिमा सब और जो गंधर्व प्रतिमा बना है तो वो लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर में बना है। उसमें रेड और वाइट चित्ती पूरा में रहेगा, ठीक है। ये आपका भारत कला भवन म्यूजियम जो है बनारस में, उसमें भी है। हम लोग का BHU के अंदर ही एक म्यूजियम भी है। उस पत्थर को क्यों चूज किया था? बुद्धदेव को बौद्धिक आर्ट बनाने के लिए उसी पत्थर का चूज क्यों किया? खाली तुम लोग आसान और जटिल को क्यों सोचते हो? मतलब हाँ सर इजीली अवेलेबल ना अवेलेबल। तुमको अगर काम करना है, मार्बल इधर अवेलेबल नहीं है, तुमको ढूंढ के लाओगे ना, काम करना तो लाओगे ना, उसका अलग कराना। वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखोगे मैंने बुद्धदेव का जितना स्कल्पचर है या उसका रिलेटेड है, उसमें रोम आर्ट का इन्फ्लुएंस लिया गया है। तो इन्फ्लुएंस क्यों लिया गया? कंबाइन हो गया इंडियन आर्ट वेस्टर्न आर्ट। खास करके जो गांधार की कला है, मथुरा और गांधार दोनों शैली में एक यही डिफरेंस है कि गांधार में जो है मूर्ति का चेहरा जो है थोड़ा लंबा, रोमनस स्टाइल में, और जो मथुरा शैली है उसमें थोड़ा गोलाई लिए हुए राउंड फेस है। तो यही बेसिक जो इंडियन जो आइकोनोग्राफी है वो गांधार में नहीं यूज है। इवन की हेयर, गांधार में आपको हेयर जो बुद्ध का मिलेगा उसमें ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बाल है, लेकिन उसमें गोल ऐसा जो होता है बुद्ध का जनरली वो नहीं दिखाई देगा, वो मथुरा में दिखाई देगा। और भी जो भी पीरियड में बुद्ध के ऊपर काम हुआ है, केवल गांधार शैली को छोड़ के, इवन कि उसके आईज में भी थोड़ा सा मैंने लंबे आंखें, जो जैसे कि मैंने ग्रीक में जैसे
डेटीज है, जैसे ज़्यूस, जैसे अपोलो, जैसे हम लोग से मिलते जुलते ही उनकी डेटीज है। जैसे इंद्र बोलेंगे तो ज़्यूस, जिसके पास वज्र है, बिजली की ताकत है ना। अपोलो हो गया सूर्य, सन गॉड। एरीज युद्ध का देवता। हम लोग में कौन है युद्ध का देवता, बताओ तो। कार्तिक को युद्ध का देवता माना जाता है। तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है और बहुत अच्छा सेनापति। युद्ध का देवता मतलब लीडर तभी लीडर जरूरी नहीं कि बहुत स्ट्रांग होगा, जरूरी नहीं है। उसका ग्रीक उसका युद्ध ग्रीक का प्रभाव ही गांधार में पड़ा है। का सोच जो है, हाँ, बहुत सारे तमाम मूवीज है इसके ऊपर। इसके पीछे बैकग्राउंड डाल दीजिए ये।